Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, this is lecture number 2 on the changes in foreign exchange rates. So, what we will be covering in this lecture, we will be covering some illustrations on this topic. So, before we go to the illustrations, let's revise a few definitions, a few concepts. कुछ concepts जो हैं important हैं और इन्हीं को हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इनको पहले रिवाइज कर लें. So what we are going to do in this lecture is in illustrations is translation of foreign currency transactions. So what is foreign currency transaction translations? When an entity enters into a transaction denominated in a currency other than its functional currency, that transaction must be translated into functional currency before it is recorded. So this has already been covered that if the transaction denominator is in a currency which is not that of the functional currency, so the organization must translate it into the functional currency before it is recorded. So there are mainly three types of recording. There are three steps in which this recording could be done. First one is initial recognition of the foreign currency transactions. Obviously, first time when the asset is purchased, for example, this is the transaction. So when asset is purchased, it must be recognized, it must be recorded, this transaction must be recorded. So on initial recognition, a foreign currency transaction should be recorded in the organization's functional currency by applying the spot exchange rate between the functional currency and the foreign currency. Very simple topic and concept. Second is the logical consequence. If an organization has purchased some asset, so obviously it has to pay that money. So when it is going to settle that payment, so it has to record it again. So when cash settlement occurs, the payment received from a foreign customer, the settled amount should be translated using the spot exchange rate on the settlement date. So if this amount differs from that recorded when the transaction occurred, there will be an exchange rate difference. So you can see the arrow differs. आप देख रहे हैं कि ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है. तो अभी इलस्ट्रेशन में बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी. अगर इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ जाए जिस पे आपने इनिशियली रिकॉर्ड किया था और जो है अगर एसेट परचेज किया था तो एसेट था, और अगर वो रेवेन्यू था तो आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट को रिकॉर्ड किया था. तो आपने जो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था वो अमाउंट डिफर कर सकती है कि जिस वक्त पेमेंट डेट में एक्सचेंज रेट का डिफरेंस हो जाए. तो अगर यहाँ पे कोई लॉस या गेन है, दिस वुड बी टेकन टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ द पीरियड इन विच इट अकर्ड. So now we come to the example or our illustration, so in which the concept would be cleared. So let's start that example. In this, an organization based in the US sells goods to the UK for 200,000 pounds. So organization is based in US. Obviously it is understood that their functional currency would be dollars, but the US sells goods to UK for 200,000 pounds on 28th February 20x3 when the exchange rate was 0.55 pounds is to $1. So it is clearly indicating that pound is a stronger currency than that of dollars, which means 0.55 pound can purchase $1. So pound is a stronger currency than that of dollar at this spot. On the customer pays in April 2003. So customer will pay in April 2003 when the rate was 0.60 is to $1. So you can see that exchange rate has a bit moved towards 0.60.
सो इफ अगर हम ये इसमें देखना चाहें कि पहले की बनिस्बत अब ये पाउंड स्ट्रॉन्ग हो गया है या वीक हो गया है, तो इसका जवाब ये है कि पहले 0.55 पाउंड $1 को खरीद सकते थे, अब हमें 0.60 पाउंड की ज़रूरत है $1 को खरीदने के लिए। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा जो है वो पाउंड कमज़ोर हो गया पहले के निस्बत। ये तो खैर बाद में एक दरमियान में और बात आ गई। सो लेट्स मूव टू आवर illustration or our example. This has already been discussed that surely as the company is based in the US, so the functional currency is dollars. Okay, what is the requirement of the example? How does the US entity account for the transaction in its financial statements for the year ended 31st July 20x3? So let's move on to the answer. So first time when we are going to record this transaction is translate the sale at the spot rate prevailing on the transaction date, that is 200,000 pounds divided by 0.55. This will give rise to $363,636. So an entity has in the US has sold goods to the UK for 200,000 pounds equals to the dollar amount of $363,636. So debit receivables and credit sales. So this organization has recorded its sales in dollars. And then when the cash is received, it has been told that on April 20x3 exchange rate is different. Now what would be the impact? 200,000 pounds have to be received, and we are going to divide it by 0.60. So this amount gives rise to 333,333. So it means this amount is lesser than that. So the pound has is a bit weaker than before, so the amount will be received lesser than that already have been recorded. Obviously there will be loss on this transaction. The loss will be 30,303. So how this transaction would be recorded? Obviously on the spot rate, spot exchange rate on April 2003, bank debit triple three thousands and 333 debit, receivable would be credited with 363,636, and there will be again a debit item of 30,303 which will be taken to profit or loss account. Okay, इसमें अब एक ये क्वेश्चन पैदा होता है, अब सबके जहन में ये आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएस में बेस कर रही है, तो वो पाउंड्स में क्यों चीज़ें बेचने लगेगी? तो इसमें दो बातें इसके जवाब में आ सकती हैं कि हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेस तो यूएस में कर रही है, लेकिन ये अपनी प्रोडक्ट्स जो है यूके में भी सेल करती है, और यूके में इसका एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ से ये चीज़ें सेल आउट होती हैं। और कस्टमर की सहूलत की खातिर ये बहुत जनरल सी बात है, एक आम सी बात है कि यूके में अगर सेल हो रही है तो वो पाउंड्स में ही होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि एक ऑफिस ना भी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएस में बेस कर रही है और उसकी ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो यूके में होती है, तो वो यूरोप के कस्टमर्स के लिए जो है वो पाउंड या यूरो की करेंसी ऑफर कर सकती है और अपने यूएस के कस्टमर्स के लिए डॉलर की करेंसी ऑफर कर सकती है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। सो दिस एग्जांपल इज क्लियर, इसमें कोई ऐसा और इशू नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें दो स्टेप्स थे, एक इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑन द डेट ऑफ सेल और दूसरी रिकॉर्डिंग जिसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी करना पड़ी जब कैश रिसीव हुआ है, और इसके अंदर दो डेबिट्स हैं, बैंक डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो करने का क्या तरीका है, अकाउंटेंट्स स्टूडेंट जो हैं वो इसमें कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे दूसरी वाली ट्रांजैक्शन को, एक आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखें कि कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। सो ये आपका एरो आपको लेके जा रहा है वेयर
ये अमाउंट हमें रिसीव हुई है 333,333, 6 टाइम्स आपने 3 रिसीव कर लिया, तो बैंक डेबिट हो गया 333,333 से। अच्छा जी, तो आपने अमाउंट कितना रिसीव करनी थी, दैट वाज रिसीवेबल्स, वो थी 363,636 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको आप क्रेडिट कर दें, एक हो गया डेबिट बैंक से, एक हो गया क्रेडिट रिसीवेबल से। तो अब इसका डिफरेंस जो बन रहा है, बैलेंसिंग अमाउंट, वो कितनी है, वो डेबिट पे लेसर अमाउंट बन रही है, जो कि 30,303 की अमाउंट बनती है। तो डेबिट में जगह खाली है, तो आप डेबिट में अगर जगह खाली है तो ऑब्वियसली वो लॉस होगी, तो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट को वहाँ ले जाके डेबिट कर दिया और इसमें से आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये आपकी ट्रांजैक्शन का जो है वो समराइज हो गया। इसी इलस्ट्रेशन में आपको एक और चीज़ क्लियर करता चला जाऊँ, आपके जहन में ये आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा, तो मैं क्वेश्चन रेज करता हूँ कि हमने रिसीवेबल्स को जो है अमाउंट को जो है हमने कन्वर्ट किया है, और रिसीवेबल्स हमने रिसीव करने थे, और उसी की अमाउंट को हमने जो है वो कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें ये एक्सटर्नल पार्टी के साथ इसकी अमाउंट जो है वो रिसीव करनी थी, पे करनी थी, व्हाट्सएवर। तो एक्सचेंज रेट के ऊपर इस चीज़ का असर ज़्यादा है बनिस्बत इसके। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो इस बारे में बहुत वाज़े जो है वो गाइडलाइन देता है कि मॉनेटरी आइटम्स जो हैं उनको आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है। तो ट्रांसलेशन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये गाइड करता है कि ओनली रीट्रांसलेट यूजिंग द रेट व्हाट्सएवर क्लोजिंग रेट, ईयर एंड एक्सचेंज रेट, जो भी कोई होगा। अगर ईयर एंड पे हमें ट्रांसलेशन करनी होगी तो हमने मॉनेटरी आइटम्स को इस तरीके से जो है वो ट्रांसलेट करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हमने ट्रांसलेट नहीं करना। तो मॉनेटरी आइटम्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है, कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड लोन वगैरह। तो ऑल्दो ये जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था सिचुएशन, दिस इज़ नॉट द ईयर एंड सिचुएशन, बट स्टिल यहाँ पे जो मैंने आपको उसको पहले जवाब दे दिया कि रिसीवेबल्स का ताल्लुक जो है वो एक्सचेंज रेट के साथ है, तो लिहाजा रिसीवेबल्स की अमाउंट में जो है वो तब्दीली आई है। सेल्स तो अपनी जगह पे जाके सेटल हो गई है और उसको चेंज करने की हमें कतई ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. This example is also similar to that the first one. So in this illustration, is in this example, a US organization sells apples to an organization based in Moldova, where the currency is Moldovan pound. MOL currency, it is a bit weaker currency, and the dollar is a bit stronger currency. The apples were sold on 1st October 2001 for MOL 200,000. So and were paid in for in February 20x2. Exchange rates have been provided. The rate on 1st October 20x1 is $1 is equal to 1.55 Moldavian pound, and on December 31st 20x1 this rate is 1.34 Moldavian pound is to $1. So the functional currency obviously of the organization which is working in US is US dollars. So what is the requirement? So now we come to the answer of this example. There are two transactions recording. One is on the sale date, on the date of sale, and second one is at the reporting date. प्रीवियस इलस्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की थी, एक ऑन द डेट ऑफ सेल और दूसरी ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हुआ यूँ है कि अभी पेमेंट का टाइम नहीं आया था। आई गेस पेमेंट जो है वो फरवरी में जाके होनी है नेक्स्ट ईयर, लेकिन रिपोर्टिंग डेट उससे पहले आ गई, दिसंबर 31। तो इस
एग्जांपल से पहले जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर स्टैंडर्ड जो है वो कुछ गाइडलाइन देता है, वो भी आपके ज़हन में होनी चाहिए. सो लेट्स सी द ट्रांजैक्शन we will be translate the sale at the spot rate prevailing on the transaction date. On the transaction date, it has been provided that $1 is equal to 1.55 Bolivian pound. So we will divide 200,000 by 1.55. This gives rise to 129,032 dollars. So transaction has been recorded as debit the receivables and credit the sales by the same amount, 129,032 dollars. Now, at the reporting date, we are not going to receive any money, but the standard gives us guideline that we should be translating this amount. And I would be repeating again what the standard says, that it says that the monetary items should be retranslated using the closing rate, which is the year-end exchange rate in case of the monetary items. Any exchange differences arising on the retranslation of the monetary items must be taken to the statement of profit or loss in the period in which it arises. So the subsequent measurement, this is the situation which is of unsettled transaction. ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि अभी सेटल नहीं हुई, इसकी अभी पेमेंट नहीं हुई और इसकी अब हम सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करने जा रहे हैं, जबकि ये अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है. तो इसमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि द ट्रीटमेंट ऑफ एनी फॉरेन items remaining in the statement of financial position at the year end will depend on whether they are classified as monetary or non-monetary items. So अगर तो वो monetary item है तो फिर फॉर एग्जांपल कैश, रिसीवेबल्स, पेबल्स, लोन्स, तो उसकी ट्रीटमेंट ये है कि you will retranslate that item using the closing rate. तो बात इसमें क्लियर हो गई कि अब इस वक्त ये एक अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है. अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन को की रिकॉर्डिंग करना स्टैंडर्ड के मुताबिक ज़रूरी है, जबकि स्पॉट उसको देख लेना ज़रूरी है कि अगर स्पॉट एक्सचेंज रेट में अगर डिफरेंस आता है तो फिर उसका गेन और लॉस जो है वो रिकॉर्ड करना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ज़रूरी है. तो अब हमने इधर देखा, ऑब्वियसली देयर वाज अ डिफरेंस and rate of the Malawian pound is 1.34 is to $1. So दोबारा एक बीच में छोटी सी बात करते चलें जो कि हमने पहले भी की थी कि पहले 1.55 Malawian पाउंड खरीद सकते थे $1 को, और अब इस वक्त रिपोर्टिंग डेट पे 1.34 Malawian पाउंड खरीद सकते हैं $1 को. तो क्या Malawian पाउंड स्ट्रॉन्ग हो गया पहले से? यस, Malawian पाउंड पहले की बनिस्बत डॉलर के मुकाबले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया. तो जो है ये हम चीज़ इसमें देख सकते हैं. मलेवियन करेंसी जो है मलेवियन पाउंड वो डॉलर के मुकाबले में थोड़ा सा या नहीं हो गया. जी जी शेयर करेंगे आप में से कोई? यस. तो इसका जवाब है कि पहले 1.55 मलेवियन पाउंड जो है वो ख़रीद सकते थे. $1 जो है उसको मलेवियन पाउंड 1.55 जो है उसको ख़रीदने में सर्फ होता था, और अब जो है 1.34 मलेवियन पाउंड यूज़ होता है $1 को ख़रीदने में. तो साफ ज़ाहिर है कि पहले की बनिस्बत मलेवियन पाउंड अब स्ट्रॉन्ग हो गया है. पहले 1.55 में $1 को ख़रीदा जा सकता था, अब 1.34 मलेवियन पाउंड में $1 को ख़रीदा जा रहा है. तो इन शॉर्ट पूरी बात को मैं दोबारा से रिवाइज़ करता हूँ कि ये दरमियान में एक छोटी सी बात आ गई जिसको वाज़े कर देना ज़रूरी है, आपकी दिलचस्पी की बात भी है कि पहले मलेवियन पाउंड 200,000 को हमने डिवाइड किया 1.55 से, तो हमारे रिसीवेबल बनते थे 129,032. अब जो है थोड़ी जो है मलेवियन करेंसी
स्ट्रॉन्ग हो गई, 1.55 से उसका एक्सचेंज रेट जो है वो 1.34 पे आ गया। तो थोड़े पैसों में जो है वो $1 जो है वो ख़रीदा जा रहा है। तो उसके रिजल्टेंटली अमाउंट जो है डॉलर्स की 149,254 आंसर आ जाता है। सो अब इसके अंदर ओके, करेंसी की बात जो है वो दरमियान में आ गई, वो हमने उसको डिस्कस कर लिया है। तो अब जो है इस वक्त 149,454 जो है वो इसकी वैल्यू बनती है इस ट्रांजैक्शन की। तो ऐसा करने से जो है अब इसमें गेन हासिल हुआ है। सो रिसीवेबल्स जो हैं वो विल बी इंक्रीज्ड बाय 20,222। सो जब रिसीवेबल्स की वैल्यू में इजाफा हो गया तो ऑब्वियसली हमने उसको डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में जो है स्पेस ओपन है, तो ऑब्वियसली दैट स्पेस विल बी गिवन टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड दिस इज आवर गेन। सो dear students, this is all about the second example, and we will be sharing some problems in the next lecture inshallah.